स्ट्रीमलाइंस को हम लेते हैं कि these are imaginary lines. Imaginary lines drawn on paper and tangent to them at any point gives us the direction of fluid velocity. क्या जब मैंने एक स्ट्रीमलाइन ऐसे ड्रॉ की किसी भी तरह और इसे इसमें एरो डाल दिया which indicates कि लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है. इसे टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट. चलो मैंने ऐसे शो किया कि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे tangent to streamline at any point gives us the fluid velocity at that point. So यहाँ पे velocity होगी even. Because हम कह रहे हैं कि streamlines tangent to the streamline at any point gives us the direction of fluid velocity. Length of streamline is the measure of magnitude of velocity. Two streamlines should never intersect. Because अगर intersect करेंगी तो क्या होगा? पहले मैंने दो स्ट्रीमलाइंस बनाई इंटरसेक्ट में, एक ऐसे बनाई दूसरी ऐसे बनाई. तो इससे क्या होगा? जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट आएंगे दोनों का अलग अलग. मतलब एक जगह पे लिक्विड की दो वेलोसिटीज हो गई पर इस पॉइंट पे लिक्विड की कोई एक वेलोसिटी हो सकती है, दो नहीं हो सकती. मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अगर हमने यूनिफॉर्म फ्लो रिप्रेजेंट करना है तो इसे स्ट्रीमलाइन शुड बी स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट. चाहे किसी लिक्विड के लिए स्ट्रीमलाइंस ऐसे नहीं है, स्ट्रेट पैरेलल और इक्विडिस्टेंट. इसको हम बोलते हैं दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ लिक्विड. Distance between streamlines is the measure of flow of liquid, rate of flow of liquid. मतलब अगर मैं इसमें इनको पास पास कर दूंगा बीच में एक स्ट्रीमलाइन और ड्रॉ कर. If streamlines are closely spaced, it signifies that rate of flow of liquid is large. अगर इनमें मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो this signifies rate of flow of liquid is small. इतना समझ आया पहले? इसमें कुछ पूछने वाला है तो पूछो, फिर नहीं तो लिखते हैं इसको. देखो So we टेंजेंट write वाला क्या था? streamlines. Streamlines are streamlines are imaginary lines drawn on paper such that tangent to them at any point gives us the direction of velocity of the liquid. सबसे ऊपर वाला ड्रॉ कर दो, फिर इसको लिखो. ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो. E1 V2 V3. तीन स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ की हैं P1 V2 V3 में. You can write as shown in the figure. If a streamline is drawn in the form of curve, if streamline is drawn in the form of curve, then at point P1, P2, and P3, velocity is represented by, then at point P1, P2, and P3, velocity is represented by tangent drawn at these points. Velocity is represented by tangent drawn at these points. Like strict properties of streamlines. Properties of streamlines. Properties of streamlines.
First is two streamlines should never intersect each other. Two streamlines should never intersect each other. Otherwise, at the point of intersection, two tangents can be drawn representing two different velocities. Two tangents can be drawn representing two different velocities. But at any given point, but at any given point, fluid can have single velocity only. साथ में diagram draw होंगे. The but at any other point के बाद कहाँ तक लिखा आपने? but at any other point. Two streamlines should never intersect each other, otherwise point of intersection, there are two velocities, but at any given point, the particle can have single velocity only. But at any given point, particle can have single velocity only. Next rate. Uniform flow of liquid. Uniform flow of liquid is represented by streamlines which are straight, parallel, and equidistant. Straight, parallel, and equidistant. Let's draw this. इसका हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म फ्लो है. मुझे ऐसे ड्रॉ किया. This is a non-uniform flow. Uniform flow streamlines a straight parallel equidistant. Very non-uniform flow. फिर दोनों ड्रॉ कर दो. यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. Next rate. The distance between streamlines is the measure of rate of flow of liquid. Distance between streamlines is the measure of rate of flow of liquid. If the streamlines are closely spaced, it signifies rate of flow of liquid is large. If the streamlines are closely spaced, it signifies rate of flow of liquid is large. And if the streamlines are far apart, the rate of flow is small. Can draw this is large rate of flow. This small rate of flow means volume of liquid flowing per unit time. So दोनों ड्रॉ कर लो. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्मॉल फ्लो है, और अगर डिस्टेंस कम है तो लार्ज फ्लो है. नेक्स्ट
The length of streamline. The length of streamline is the measure of velocity of the liquid. For example, the velocity profile of river depth is. जैसे जैसे हम रिवर में नीचे जाते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ती है कम होती है कम होती कम होती है। रिवर में नीचे जाने पे कम होती है लेंथ ऑफ स्ट्रीमलाइन कम करते जाओ रिवर में डेप्थ बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी फॉर एग्जांपल में क्या लिखना था? सर नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन फ्लो दो अलग चीजें हैं अगर मैं डायग्राम लूं पिछले में इसमें मैंने शो क्या किया P1 पे वेलोसिटी कितनी है V1 P2 पे V2 और P3 पे V3 अगर मैं किसी चीज का वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी जगह पे जैसे P1 पॉइंट है अगर P1 पॉइंट से जो भी लिक्विड का पार्टिकल निकला अगर उसकी वेलोसिटी सेम है सबकी V1 है जो भी P1 से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V1 ही है तो हम फ्लो को कह देते हैं इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो P1 P2 P3 पे अलग अलग हो सकती है पर अगर एक जगह से निकलने वाले सारे लिक्विड्स पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी तो इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आया ये डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती हैं एक जगह पर वेलोसिटी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए हर पार्टिकल जो P1 से निकलेगा उसकी वेलोसिटी V1 अगर होती है तो हम फ्लो को बोल देंगे इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो तो डिफाइन जब हम करते हैं we say that in streamline flow velocity of any liquid particle is same as that of its preceding particle मतलब we say velocity of any liquid particle is same as that of its preceding particle मतलब यहाँ P1 से जो भी पार्टिकल निकला उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उससे पहले निकलने वाले पार्टिकल की भी मतलब सबकी सेम ही होगी अगेन आई एम रिपीटिंग 3 पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकती है P1 पे सबकी V1 होनी चाहिए P2 पे सबकी वेलोसिटी V1 होनी चाहिए P3 पे जो भी पार्टिकल निकले उसकी वेलोसिटी V3 होनी चाहिए तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है और अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होता तो वी कॉल इट अ टर्बुलेंट फ्लो समझ में आया क्या बताया किसी को डाउट है तो पूछो otherwise right streamline flow the flow of liquid is said to be streamlined if flow of liquid is said to be streamlined if velocity of any liquid particle velocity of any liquid particle passing through a given point is same as that of its preceding particle. Velocity of any liquid particle passing through a given point is same as that of its preceding particle. For example, ये फर्स्ट वाला डायग्राम दोबारा से बना लो फर्स्ट वाला डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर दो For example, if all the liquid particles passing through P1, all the liquid particles passing through P1 have same velocity
All the liquid particles passing through V1 have same velocity. There is V1 and particles passing through. And particles passing through. And particle passing through. P2 has same velocity V2. Then flow is said to be streamlined. Then flow is said to be streamlined. Velocity at P1 and P2 can be same or different. Velocities at P1 and P2 can be same or different. Velocity at P1 and P2 can be same or different. Velocity at P1 and P2 can be same or different. Next paragraph, if the flow of liquid is not streamlined, if the flow of liquid is not streamlined, then it is called turbulent. If the flow of liquid is not streamlined, then it is called turbulent. Flow of liquid is not streamlined, then it is called turbulent. For example, levers during normal flow. Levers during normal flow is streamlined, whereas rivers during floods, is a turbulent flow, whereas rivers during floods is a turbulent flow. It was found experimentally that when velocity of the liquid increases, then at one particular velocity, called critical velocity, the flow of liquid changes from at one particular velocity, the flow of liquid changes from streamlined to turbulent. One particular velocity called critical velocity, the flow of liquid changes from streamlined to turbulent. Next paragraph, critical velocity. Critical velocity. आपको क्या लगता है वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी पे वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज होगा, किस पे डिपेंड करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स पे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछूं ब्यास, ब्यास पहाड़ों में मतलब मनाली की साइड जाओ और ब्यास जो अमृतसर के पास है, इन दोनों में फर्क क्या है? कहाँ पे फ्लो आपको स्ट्रीमलाइन लगता है, कहाँ पे टर्बुलेंट?
देखी है ना दोनों जगह, अमृतसर के पास वाली तो पक्का देखी होगी, ब्यास या सतलुज लुधियाना के पास देखी है। यस सर। यस सर। फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है कम है सर कम होता कम है। नॉर्मल डेज में? भाई आप मनाली की साइड चले जाओ तो रिवर फ्लोज विद लार्ज वेलोसिटी, वो टर्बुलेंट फ्लो है। अब एरिया यहाँ पे भी वेलोसिटी, कम है। यहाँ पे वेलोसिटी कम क्यों होगी? एरिया क्योंकि ज्यादा हो गया। विड्थ ऑफ रिवर बढ़ गई, विड्थ बढ़ती जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो मतलब जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, कि इस पे डिपेंड कर रहा है कि एरिया कितना है, डायमेंशंस क्या है जहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है। वही पानी अगर पतली पाइप में से फ्लो करेगा तो इट कैन बी अ टर्बुलेंट फ्लो, बड़ी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास करेगा तो इट कैन बी अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। और डिपेंड करता है दो मेजर फैक्टर्स पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या था, हम विस्कोसिटी किसको बोलते थे? तो मतलब सर कितना गाढ़ा है रिलेटिव लिक्विड। फ्लो। सर रिलेटिव फ्लो को रोकने के लिए फ्लूइड के अंदर। क्या बोला? सर फ्लूइड के अंदर दोबारा रिलेटिव फ्लो रोकने के लिए। मेरे को डिफाइन करके बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? हमने इसको डिफाइन किया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, ये याद है कौन सा टॉपिक में किया था? न्यूटन्स लॉ में। न्यूटन्स लॉ याद है? यस सर। क्या? एफ बोलो। फिजिकल टू एम ए। क्या? क्या बोला? सर एफ फिजिकल टू एम ए। अच्छा, न्यूटन्स लॉ में वो नहीं कह रहा, न्यूटन्स लॉ लिक्विड्स में पढ़ा था जब ईटा को डिफाइन किया था। हमने डिफाइन किया था, इट्स द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंटेन्ड एट यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। लिखो कोई बात, क्रिटिकल वेलोसिटी, हेडिंग डालो क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच streamline flow changes into turbulent. The velocity at which streamline flow changes into turbulent is called critical velocity. Velocity at which streamline flow changes into turbulent is called critical velocity. Experimentally, it was found that experimentally it was found that critical velocity depends on density of the liquid, diameter of the tube through which liquid is flowing, diameter of the tube through which liquid is flowing, and diameter of the tube through which liquid is flowing, and coefficient of viscosity, that is V proportional to density raised to power A, diameter raised to power B, and coefficient of viscosity raised to power C. So मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, velocity का फॉर्मूला एल टी माइनस वन। density diameter is L1, coefficient of viscosity, to solve इसको dimensions.
आता नहीं मैं कर दूं this density d is diameter 8 double OD in rate this care कर लिया नोट ये second rate the k is constant of proportionality k is constant of proportionality called Reynolds number k is constant of proportionality called Reynolds number k is constant of proportionality called Reynolds number रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है इसको कई बार एनआर से भी डिनोट किया होता है वो dV by eta. If Reynolds number for a fluid flow, if Reynolds number for a fluid flow is less than 2000, if Reynolds number for a fluid flow is less than 2000, the flow of liquid is said to be streamlined. Flow of liquid is said to be streamlined. If Reynolds number is greater than 3000, the flow of liquid is said to be turbulent. If Reynolds number is more than 3000, the flow of liquid is said to be turbulent. And if so हमने कहा 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट अगर 2000 और 3000 के बीच में है तो so we say and if Reynolds number is between 2000 and 3000 the liquid flow is unstable and it changes from streamlined to turbulent मतलब ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं है पर 2000 और 3000 के बीच में कहीं पे स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा पर 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन ही है 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट है बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में अभी चेंज हुआ है या नहीं लाइक स्मॉलर वैल्यूज के लिए 21 2200 उस पर वेबली इट विल बी स्ट्रीमलाइन लार्जर वैल्यूज के लिए इट कैन बी टर्बुलेंट 2800 2900 बट ऐसे नंबर नहीं है 3000 हो जाए तो हम कहते हैं कि पक्का आप टर्बुलेंट फ्लो ही है समझ में आए नेक्स्ट रेट numerical liquid liquid is placed in a container of width 10 meter and height 2 meter. The liquid is filled up to
1.5 meter height. If force is applied on the container, what should be? What should be the minimum time required? Container to acquire a velocity of 20 meter per second without spilling the liquid. Without spilling the liquid. तो solve इसको. क्वेश्चन समझ आया क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया था एक कंटेनर है जो 10 मीटर वाइड है. 2 मीटर इस कंटेनर की हाइट है. But it filled 1.5 meter है. तो मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा. पीछे आ जाएगा. फिर ऐसे इंक्लाइंड बन जाएगा. याद है कल किया था यस सर. कैसे? ज्यादा इंक्लिनेशन हुई तो यहाँ से बाहर भी गिर सकता है. तो मैक्सिमम इस साइड कितना ऊपर जा सकता था? 0.5 मीटर. मतलब फाइनल डायग्राम ऐसे बनेगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए इसको. ये शेप ले लेगा ये. इधर से 0.5 मीटर ऊपर जाएगा तो इधर से 0.5 ही नीचे आएगा. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर. और इसकी विड्थ कितनी थी? 10 मीटर. पहले देखो यहां तक समझ आया कि एक साइड से 0.5 ही ऊपर जा सकता है, उससे ज्यादा जाएगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा. tan थीटा कितना है इस डायग्राम के हिसाब से? वन बाय 10. तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? g/10. g is 10 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने बताना था कितना टाइम लगेगा इसकी वेलोसिटी को 0 से 20 तक बढ़ने में. तो काइनेमैटिक्स क्या कहती है? t इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय. v हमारे पास 20 है, u 0 है, एक ही वैल्यू वाला है, तो कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड्स. मिनिमम इतना टाइम चाहिए, इससे ज्यादा तो जितना मर्जी लो. बिकॉज एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा हुई तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा. समझ में आया क्या किया? किसी को डाउट है तो पूछो. यस. नेक्स्ट टू राइट. An L-shaped tube is completely filled with liquid as shown. L-shaped tube is completely filled with liquid as shown.
What should be the acceleration A? What should be the acceleration A so that liquid does not come out of the liquid? Liquid does not come out of the tube. ऐसे क्वेश्चन ऐसे ट्यूब है इसमें पूरी लिक्विड से फिल ये डिस्टेंस h है और ये लेंथ है तुमने बताया a की वैल्यू कितनी हो ताकि लिक्विड कहीं से भी बाहर ना निकले ना इधर से ना इधर से ज्यादा एक्सेलरेशन दे दूंगा तो किधर से बाहर आएगा सूडो फोर्स किधर लगेगी ऊपर से ऊपर से बाहर आ यहाँ से बाहर आ जाएगा कम एक्सेलरेशन देंगे तो आगे से इधर से बाहर आ नीचे से इसको तो यहाँ से लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा तो हमने बताना है ए की वैल्यू कितनी हो ताकि लिक्विड किसी साइड से बाहर आए मेरे को ये बताओ कि अगर ये हाइट एच है यहाँ पे प्रेशर कितना होगा एच जी प्रेशर एट ए वर्टिकल लिक्विड कॉलम फॉर्मूला क्या था एच जी प्रेशर लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या था एच रो जी प्रेशर एट 82 हॉरिजॉन्टल लिक्विड कॉलम किसके कारण कितना प्रेशर होगा कल राइट क्या चाहिए कल या परसों जब मैंने क्लाइंट वाला केस किया था मेरे को बताना है यहाँ पे एच क्या था ऊपर वाले फॉर्मूला में एच क्या था हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हाइट और जी क्या था एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो ये वर्टिकल हाइट और ये वर्टिकल एक्सेलरेशन तो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लिखूंगा तो हॉरिजॉन्टल लेंथ इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
कल ड्राइव किया था, खोल के देखना अपना रजिस्टर। एलरोई, इधर से प्रेशर लग रहा है एलरोई, इधर से एचओजी। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा। दोनों साइड से अगर बराबर प्रेशर लग गया तो liquid will not come out. HOG A dash कितना आ गया? HG/L। A dash कौन सी एक्सेलरेशन इसकी? A कितना हो गया? A dash by 2, HG/12। कौन बताएगा ये कहां से आया? A is equals to A dash by 2। A dash मैंने किसकी एक्सेलरेशन 2 की, Center और of A वो so center रिम के ऊपर रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था ऐसे। अगर इसकी वेलोसिटी दी है, इसकी टू भी होगी। by 2. सिमिलरली इसकी एक्सेलरेशन अगर 2a है तो इसकी a होगी। तो इसको मैं a डैश ले रहा हूँ, तो a कितना हो जाएगा? a डैश by 2। याद है रूलिंग? yes sir Yes. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्या थी? 0 तो वो कंसेप्ट लगा यहाँ पे hg/2l। देखो आया समझ कैसे किया? क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्टूडेंट, two immiscible liquids. Two immiscible liquids are filled in container as shown. You find the velocity of a flux. Find velocity of a flux. तुमने दो लिक्विड्स फिल किए, की डेंसिटी है दो, और नीचे एक दूसरा लिक्विड फिल किया, इसकी डेंसिटी है 2। और एक यहाँ पे होल किया ऑरिफिस, ये बताना है कितना होगा। बी पॉइंट ओ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, तो इसको सरफेस टू लेवल कैसे करेंगे? कुछ आइडिया दे सकते हो? कौन सा कंसेप्ट? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कैसे निकाली थी? और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कौन सी एप्लीकेशन थी? Bernoulli theorem. नॉलेज थ्योरम की पढ़ लिया करो घर में थोड़ा सा। सो टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट ओ शुड बी सेम। इसको मैं मान लेता हूँ रेफरेंस। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट ओ पे? अगर मैंने ओ को रेफरेंस माना तो इधर पोटेंशियल एनर्जी 0। ए पॉइंट की कितनी होगी? h/2. यही होगी। ए पॉइंट पर लिक्विड रेस्ट करे तो काइनेटिक एनर्जी 0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। ओ पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, पोटेंशियल एनर्जी 0।
इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का? तो भी square. हाफ रो वी तो भी स्क्वायर। square. क्या लिखूं यहाँ पे? प्लस हाफ, क्योंकि जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी 2 रो है, तो हाफ 2 रो इंटू वी स्क्वायर, 2 रो जी एच। velocity of flux is rho to gh। आया समझ? सर एक बार फिर से समझा दो। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये कितनी हाइट है? h/2। डेंसिटी कौन सी है? 2। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 रो इंटू जी इंटू एच बाई टू। ये हाइट कितनी है? एच। डेंसिटी रो, तो पोटेंशियल एनर्जी दो जी एच प्लस 2 रो इंटू जी इंटू एच बाई टू। और प्रेशर यहाँ पे कितना है? 0। एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक। काइनेटिक एनर्जी सरफेस की जीरो। जीरो क्यों लेते थे? बिकॉज हम रेस्ट पे। सरफेस पर लिक्विड को, यहाँ से बाहर आ रहा है तो यहाँ प्रेशर दिए, इसको रेफरेंस माना, इसको रेफरेंस मान लिया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 रो इंटू वी स्क्वायर। दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी को इक्वेट कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर बी इज इक्वल टू 2gh। देखो आया समझ के? नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट लिखो। An orifice is made. An orifice of cross-sectional area A, small a. In our orifice of cross-sectional area small a is at a depth h from the surface as shown. The beaker is placed. The beaker is placed on smooth horizontal surface. Beaker is placed on smooth horizontal surface. Fine. The force required. Keep the beaker in equilibrium. आपको ऐसे ही गिवन is smooth horizontal surface. इसके ऊपर एक बीकर पड़ा, इसमें लिक्विड फिल्ड है। हमने यहाँ पे एक होल कर दिया अपना सेक्शनल एरिया ए डिफरेंस, तो यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। अब अगर पहले जब तक होल नहीं किया था तो लिक्विड रेस्ट पे था, बीकर भी रेस्ट पे था। लिक्विड अगर इधर से बाहर आएगा तो बीकर किधर जाना चाहिए? मोमेंटम कंजर्व करना है। जैसे बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे। बीकर पीछे। लेफ्ट। तो अगर इधर लिक्विड बाहर आएगा तो बीकर पीछे जाना शुरू हो जाएगा। हमने बताना है हम कितनी फोर्स लगाएं ताकि बीकर पीछे ना जाए। कैसे करो? बेसिकली कंसेप्ट यही है कि जितनी फोर्स लिक्विड बीकर में लगा रहा है आपको उतनी फोर्स ही लगानी है। तो फोर्स एग्जाम्पल फाइन, लिक्विड कमिंग आउट ऑफ बीकर। ये बता दो बस, वही फोर्स आपको लगानी है। कैसे निकालें इसे? सर जितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है उसको
मास से डिवाइड कर फिर मास निकालना और उससे एक्सेलरेशन। कुछ भी। बस ये नहीं होती, मैंने तो शायद ये पढ़ेंगे। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इनिशियली जब रेस्ट में था तो मोमेंटम जीरो, फाइनल इज mv/t। मास कितना और v/t क्या होता है? v/t वॉल्यूम अपॉन टाइम, av। force exerted is kg per rho। v कितना? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था अगर डेप्थ h पे है तो? 2gh। कौन सी रॉकेट साइंस थी? अगर आपको याद है ये फॉर्मूला हमने लॉज ऑफ मोशन में भी ड्राइव किया था, तब आपको ए भी पता नहीं था, मैंने कहा था लिक्विड्स में जाकर ड्राइव करेंगे। सो फोर्स एक्सर्टेड इज 2a rho gh। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम करते हैं, इसके आगे इतना पढ़ लो पहले। और ये साथ का साथ पढ़ते रहा करो, पेंडिंग मत छोड़ो काम।